Hi guys, welcome back to my channel Gunjan Singh. So here I present you a very requested video on my channel. So there are people from my college who want to take admission in SGS ITS Indore. Apart from that, there are also people from the outer, areas of Madhya Pradesh specifically. They want to know more about SGS ITS Indore. So this is a requested video. I have been seeing few comments also in my shorts video or YouTube video which I have recently uploaded, like flat hunting in Bombay. So there is a scenario that people wanted to know about SGS ITS Indore. Since this was a requested video, so let's start with the basics, because I've been in SGS ITS Indore for like 4 years. I've been there, attended the classes, attended the societies, clubs, sab kuch. I have been there for a huge amount of time also, and सब देखा है, प्लेसमेंट सिनारियोज देखे हैं, एंड इवेंचुअली इन दिस सिचुएशन में भी अगर कोई और इंसान होता जो ये वीडियो शूट कर रहा होता, जो शायद कॉलेज से पास आउट नहीं होता, तो वो शायद इतना आपको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं दे सकता हो. बाकी मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलती होंगी. कट ऑफ्स आपको पता पड़ जाएगा, आप MPDT की काउंसलिंग लिस्ट को देख सकते हो, उससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट जो एक बार बच्चा आ जाता है कॉलेज में, उसके बाद चीज़ें कैसी होती हैं, सिनारियोज कैसे बिल्ड होते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक स्टूडेंट ही बता सकता है. तो आई गॉट एडमिशन इन टू SGS ITS इंदौर. पहले कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिनको नहीं आइडिया है कि SGS ITS इंदौर क्या है क्या नहीं है. तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन in Madhya Pradesh. So it's basically it offers multiple courses. There are I'm actually opened the website also. There are multiple courses that's available within our college. So let's go to first of all, on my behalf, as I mentioned that my name is Gunjan Singh and I did my BTech in Information Technology. So my batch is 21 to 25. So I've recently got placed from the campus, so I can help you in IT domain a better way. But I have friends from multiple branches, so in that case, that this is a situation where I can help you out. Honest opinion मैं आपको दूंगी. तो अगर हम UG स्ट्रक्चर की बात करें तो देर आर मल्टीपल ब्रांचेस. देयर इज IT, BM, and then we have B Pharmacy also available. We have EC, CSE, EI. I think EI is there also now. I don't know the scenario which EI is also there. Then electrical is there. So there are multiple branches available within our campus. The cutoff for being specific, honestly, I haven't reviewed the MPDT counseling list for this year. And I think JEE mains happened. But the point is, the estimated range when I see my friends in till E, should I say, because there are scenarios. E you can get, I think, expect till 80k, 85k approx. Yeah, I've seen my friends who have got admission into electrical engineering around 80k, or to be very specific, 75k till 80k is a good range. But the point is, in my college there are multiple rounds. There is a round 1, then there is round 2 for MPDT, then there is an internal branch change round, and there is a CLC round also if there are seats available. So cutoffs can vary. All you can expect कि आप जितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके एडमिशन सीख कर सकते हो. दिस इज समथिंग विच यू शुड एक्सपेक्ट. So this is regarding the branch structure that we have it in SGS ITS. There are multiple branch, CS, IT, that is considered to be a good branch if we talk about software companies visiting our campus. But then there I consider electrical, EC equivalent to good branches, because if you it's a good, in our college EC is considered to be the toughest branch. Honestly, the curriculum, the faculty structure, the syllabus they have, I think it's on the complicated side. CS is also considered to be tough. What happens, let's go semester wise so that things are clear to you guys, because in general बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो एकदम समझ में नहीं आएंगी. तो ब्रांच स्ट्रक्चर आई थिंक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल ब्रांचेस. कट ऑफ वाइज अगर देखा जाए तो देर इज CS, IT, देन आई थिंक EC, EI, then electrical, then mechanical, then we have IP, civil, that varies, and then biomedical engineering. So this is the flow that we have as of now. I think this is something which I had in my time also, and this is a scenario, I think this will vary a little bit only. तो अब अपने ब्रांचेस के बारे में देख लिया है. Fees also, when I got admitted to GS, the fee structures were, IT was a self-finance branch and BM was a self-finance branch. What is a self-finance branch? That there is something that you need to pay more for.
So other branches are considered to be a more autonomous, but these are the branches that you need to give more payment for. I'll just make it the act of funding something like business education project using your own resources rather than relying on external loans or grants. So basically, if the institution is getting some sort of grants or something like that, and for some sort of specific branches they are getting, then that is considered to be a non-finance or non-self-finance. But for IT BME, it is a rule that is considered to be a self-finance branch. So generally, the fees is on the higher side. So talking of my fees when I was in college, I think it was around 60K. Tuition fees, I'm talking about the semester fees. So it was around 60K, I guess. Yeah, I think it was around 60K. And then hostel, I'll talk in the separate video, because then it will be a huge chunk of data presented to you, all of you guys, and you'll get distracted. So for hostels, jo bhi hai, I'll make a separate video on that. Baki, so this was something, the fees. And the batch structure was also 120. Now the point is, there are multiple sections within the branches. For CSE, I feel there are 2 sections that they have created, section A, section B, and for also IT also there is section A, section B, and I think this is the same case for multiple branches. So now the enrollment of students or the seats must have been increased. On the website I'm not able to see that honestly, because it's not reflecting there. बट इन जनरल वो थोड़ा इंक्रीज हुई है सीट्स, जितना मुझे आइडिया, बिकॉज आई हैव सीन माई जूनियर्स द बैच साइज इज अराउंड 250 फॉर IT. So it must be the same for CSE or EE also, I guess. I'm not sure on that, but it has increased. So I think you must see the website sgsits.ac.in, and that can help you, analyze the situations, or maybe the students who are appearing for JEE, they must be seeing stuff. So ये सारी चीज़ें तो आपका एडमिशन तक की हैं, बट एडमिशन के बाद क्या क्या होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये सब सिचुएशन में ऐसा होता है ना, बच्चे को पता नहीं होता है, वो बोलते हैं GS है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है MP में, तो जाते हैं, तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बट कॉलेज में आते हो, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट अ गुड इंस्टीट्यूशन, इट इज़, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एज अ नोविस होते हैं, यू डोंट नो कि आप कॉलेज आते हो तो आपको एकदम से लगता है ना कि अरे ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो ब्रांच का समझ में आ गया. दूसरा, कट ऑफ वगैरह 75-80 के तक तो आई थिंक ई मिलता है, बट एक बार आप देखो उसको अच्छे से जाके MPDT की वेबसाइट से देखो. नो यूट्यूब वीडियोस एज स्पेसिफिक, उनको ही देखो यूट्यूब वीडियोस को जो MPDT का डेटा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज PDFs अपलोड होती हैं आफ्टर एवरी राउंड, राइट, तो वो चीज़ आप देख सकते हो. इसके अलावा अब अपन आ गए हैं कॉलेज का इंफॉर्मेशन दे दें तो इट इज़ वेरी नियर टू द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बी इट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और बी इट प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6. 1 और 2 से इट इज़ फॉर अबाउट a kilometer distance, but 5-6 it's a walking distance. But whenever I used to come to college, I used to have lots of luggage. So मैं travel initially, मैं अगर छोटा बैग होता तो मैं वॉक करके चली जाती थी, but then I need to take auto for that as well. So this is something external, but just कि पास में है कॉलेज, सिटी के अंदर है. There are multiple places. जैसे अगर हमारा जो एरिया है GS का, GSIT श्री गोविंदराम सेक्सरिया, तो ये तो फाउंडर का नाम हो गया, इंस्टीट्यूट इनके ऊपर बना हुआ है, राइट. तो SGS ITS पूरा जो अपना है वो बेसिकली लैंटन स्क्वायर करके एक चौराया है, इट्स जंक्शन, उसके बहुत पास में ही है, जस्ट नियो. एंड द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे आसपास स्पेसेस भी हैं विजिट करने के. दैट इज़ ऑल्सो I'll take for the last. Now the structure has been clear to you. ब्रांच पता चल गई, कट ऑफ वगैरह आप MPDT से देखो. Next we'll move forward for just a second. I'll just check. I have made a few notes, so speaking accordingly. Yeah, this was something. Yeah, there is a concept of mentor-mentee also. Whenever you year wise बात करते हैं, because that's important. Fees का structure मैं I was just seeing on the website, so it has increased. It is around 1 lakh. I think, yeah. It is around 1 lakh per 1 lakh, I guess, yeah. Because mine was I think 60K, so it has increased around 80K 90K for sure. आप एक बार उसको भी देख लो. अब बाकी हाँ, इसमें अगर फाइनेंसिस का किसी को इशू है, बिकॉज होता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो देयर इज़ अ स्कॉलरशिप आई थिंक दैट इज़ मेधावी, दैट इज़ हैपनिंग विद इन आर मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज़ गिविंग फाइनेंसिस or reimbursements to students. Basically they are getting their fees paid off. So Medhavi mein you have a criteria that if you are a CBSE student you should have 85% more
तो आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है एंड फॉर MP आई थिंक इट्स 75 और 70, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट इट इज़ कि अगर आपके 70 या 75 से ऊपर है तो वेव ऑफ हो जाती है. तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, बी इट मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे वेव ऑफ होगा आपका. So this is something a little extra information, but it's also important because people sometimes feel कि यार I don't have that much of expenses to I don't want to put pressure on my parents. There are students, I have seen them from different areas of, because I'm born and brought up in Gwalior, Madhya Pradesh, and when I came to Indore, मेरे को तो नहीं पता था honestly, बहुत सारे शहरों के नाम मेरे लिए नए थे. I haven't heard of Betul और Dhar और many places. देवास वॉज ऑल्सो न्यू टू मी ऑनेस्टली. तो फिर क्योंकि आई वॉज इन माई ओन बबल, घर पे थे, किसी को कुछ आइडिया तो होता नहीं है मतलब, और या तो आप बहुत स्मार्ट हो एंड बीइंग द एल्डर वन माई फैमिली, तो इट वॉज इतना क्या मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड का आइडिया तभी लगता है आप जब कॉलेज में जाते हो. तो फिर व्हेन आई वेंट टू इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज़ अ नॉन एडिटेड वीडियो, बिल्कुल 1-to-1 कॉन्वर्जेशन है. तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट 1-to-1 ओनली बिकॉज कीपिंग इट मेकिंग द एडिटिंग एंड एवरीथिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस बिकॉज इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो फॉर यू गाइज एंड ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो है. सो आई थॉट कि इसमें एडिटिंग वगैरह कोई ऐसा चूज़ भी नहीं है. तो इसके अलावा आई वाज टॉकिंग कि व्हेन यू आर न्यू टू द कॉलेज, तो फीस का जो चीज़ है उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना. मेधावी की एक बार आप वो सब देख लो, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. फैमिली इनकम इज़ द बैरियर. मेरे केस में था कि वो फैमिली इनकम का कुछ इशू आ रहा था. अब आई थिंक उन्होंने वो रेंज बढ़ा दी, आई थिंक टिल 12 लाख कर दी है, बट एक बार आप देख लेना वो चीज़ क्या है. उसके अलावा द percentage is 85 for sure for CBSE. For MP I think it is 75 or 70. You need to cross check on that. इसके अलावा अब अपन आगे, अपना एडमिशन हो गया. एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, राइट, एंड पासिंग सर्टिफिकेट. और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट ऑल्सो बनवाना पड़ता है, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना आप लोग. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गैप हो गया, ये सब हो गया, सर्टिफिकेशंस. उसके बाद एक एल्यूमिनाई क्लब है हमारे में. बेसिकली एल्यूमिनाई क्या होता है, आप जैसे मैं आई विल बी एन एल्यूमिनाई ऑफ SGS ITS इफ आई पास आउट सून, बिकॉज एडमिशन एंड से मेरा हो गया है, लास्ट फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हो गए. सो आई एम वेटिंग फॉर माई डिग्री एंड फॉर द फाइनल क्लैरिफिकेशन. तो द थिंग इज़ कि आई विल बी एन एल्यूमिनाई इफ आई विल वर्क हार्डर और मैं अच्छा करूँगी लाइफ में, तो पीपल विल माई कॉलेज विल रिमेंबर मी इन दैट केस, बिकॉज आप जब जाओगे तो आपको बहुत कुछ फैसिनेटिंग एल्यूमिनाई सुनेगा. तो वो एक रिसिप्ट बनाते हैं एल्यूमिनाई सेल के, 1000 रुपीज़ आई पेड, आई रिमेंबर दैट कॉस्ट. उस टाइम पे याद था मुझे एग्जैक्टली. तो आपको एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे बुलाएंगे, गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम है बेसिकली. आप देखना शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने एक बार ऐड किया हुआ है. तो वहाँ पे आपके एडमिशन्स चलते हैं, बहुत बच्चे आते हैं. एंड वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड, टॉक टू अदर लाइक चिल्ड्रन आउट देयर ऑल्सो. सबसे बात करो, सीखने को मिलता है. तो आप जाएंगे एंड देयर द मंदिर ऑफ द कॉलेज ऑल्सो. वो मंदिर बहुत, आई एम एक्चुअली वेरी कनेक्टेड टू द टेम्पल बिकॉज आई एम अ साई बाबा डिवोटी एंड देयर इज़ अ मूर्ति ऑफ साई बाबा एंड आई फील हिज गाइडेंस हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी एंड विल बी विथ मी. तो आप लोग कॉलेज के टेम्पल विजिट करना बिकॉज वो ऑपोजिट टू गोल्डन जुबली है. जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे या गए हो तो दिस इज़, आप एडमिशन आपने ले लिया. आई कंसिडर कि अब तक एडमिशन का सिनारियो हमने डिस्कस कर लिया है. अब आती है बात फर्स्ट ईयर की. फर्स्ट ईयर में द केस इज व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आई थिंक इट वाज 22nd of March आई गेस, और 23rd of March. I along with my roommate who was from CSE, we kind of met and discussed together that we'll be the roomies, and we got into, my section was section F, and the classroom was I think 407 or 402, याद नहीं इतना. तो इतना था कि फिर हम जब गए क्लासेस में, तो फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वॉज मैं, बिकॉज हमारा एक सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड. तो दूसरे सेमेस्टर में मैंने, तो उस सेमेस्टर्स में, हमारे ऑनलाइन सेमेस्टर्स में मुझे जितना याद है, आई हैड केमिस्ट्री, इंग्लिश, एंड देन वी हैव कंप्यूटर, या सी प्रोग्रामिंग, बेसिक सी प्रोग्रामिंग करके एक, जिन लोगों को, जैसे मेरे को नहीं आइडिया था सी क्या होता है, C++ क्या होता है. मैं बहुत 11th-12th में मेरा बैकग्राउंड ही नहीं रहा है. तो और इवेंचुअली मैं ग्वालियर से हूँ, तो मे बी स्टूडेंट्स आर स्मार्ट हियर ऑल्सो, बट मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इतना इंटेलिजेंट इन सी और ये सब में, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब आइडिया मुझे कॉलेज में आके ही लगे. तो ऐसे बहुत से बच्चे देखे मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनारियो दैट एग्जिस्ट, कि बेसिकली हमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है. एंड आई वॉज वन ऑफ दोज. सी प्रोग्रामिंग था, then we had chemistry, English, then there were 2 other subjects. I'm not able to recall the names of the first year subjects, I guess. These three was there.
2 subjects I'm not able to recall. So this was online, so it had and got a good CGPA, people were there, and we kind of, and this was the easy semester honestly. The next semester, which is the second semester, it is in the first year बहुत टफ लगता है बच्चों को, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स होता है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, तीसरा सब्जेक्ट होता है अपना सिविल फिजिक्स, उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ आपको दिस इज़ अ टफ सब्जेक्ट ऑनेस्टली, इंजीनियरिंग ड्राइंग. Then we have basic BEEE, which is basics of electrical engineering, and one more subject is there, mathematics obviously. तो ये सब्जेक्ट, ये सेमेस्टर विच इज़ द सेकेंड सेमेस्टर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टफ ऑन द अदर साइड, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स एक अच्छे सब्जेक्ट्स हैं. बेसिकली ये सब्जेक्ट्स रखे क्यों गए हैं कि दे वांट स्टूडेंट्स टू हैव एन एनालिसिस, क्योंकि 1 साल के बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होता है, तो दे वांट कि उनको स्टूडेंट्स को कि जब भी अगर वो ब्रांच चेंज अगर हो रहा है तो उनको बेसिक आइडिया हो. अगर कोई मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आ रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल का आइडिया होना चाहिए, या तो कोई फर्स्ट ईयर का अगर हम पूरा करिकुलम भी देख ले तो ऐसा करके सिनेरियो रहता है. तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल, आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, आपको पढ़ना पड़ेगा अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर श्योर. भाई उसमें तो मुझे भी डर लग गया था कि मैं फेल ना हो जाऊँ, बट मैं नहीं हुई थी. बट बहुत से बच्चे थे जिनके 22 नंबर आए थे 70 में से, तो ऑन द वर्ज ऑफ फेल वाला चीज़ रहता है. एंड 75% क्राइटेरिया मैंडेटरी रहता है, फर्स्ट ईयर में भी रहता है, चारों साल रहता है. तो आपको अटेंडेंस का तो ये लोग करते हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि अब डायरेक्टर भी चेंज हो गया, न्यू डायरेक्टर इज नितेश पुरोहित. तो डायरेक्टर पहले जो राकेश सक्सेना था उनके टाइम में भी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट थी, एंड हमारे डिपार्टमेंट में भी चीज़ें स्ट्रिक्ट थी. एंड जिनका नहीं होता था, जो डिटेन की लिस्ट पे होता, डिटेन मतलब जो जिनकी अटेंडेंस 75% से कम है, या बहुत से बच्चे होते थे जिनकी, मतलब बहुत से तो नहीं, 3-4 बच्चे जिनकी 30-40% अटेंडेंस होती थी, बाद में बहुत उन पर प्रेशर आ जाता था. तो ये चीज़ मत करना अपनी लाइफ में कि हम कॉलेज आए हैं मज़े करने हैं, तो इसके चक्कर में अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दिया या अपने अकेड स्कोर पे ध्यान नहीं दिया. तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक मेरा जो ऑनलाइन सेमेस्टर में था उसमें 8.74 आई थिंक वॉज द CG, एंड सेकेंड सेमेस्टर में मेरा 7.9 CG था. एंड आई थिंक इट वॉज डिसेंट एज पर मी, बिकॉज ED करके जैसे टफ सब्जेक्ट था, मैं पेपर दे के आई थी और मुझे लग रहा था कि यार मैं बस पास हो जाऊँ. 22 नंबर आने चाहिए थे, मेरे 35 आ गए थे, 35 वॉज माई स्कोर. एंड उस दिन सिचुएशन ये हो गई थी कि मेरे आसपास सारे टॉपर बच्चे बैठे हुए थे, तो मैं अलग पैनिक मोड हो जाता है ना, कि आप इंटीमिडेट हो जाते हो कि यार इसकी तो इतनी शीट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती है, लाइक इतनी बड़ी, तो उन शीट्स में आपको ड्राइंग करनी होती है, आप 3D व्यू बनाते हो. सपोज अगर ये बॉटल है, तो इस बॉटल को आप, दिस इज़ द फ्रंट व्यू, बट दिस इज़ द टॉप व्यू, एंड फ्रंट व्यू हो गया. एंड अगर अपन यहाँ से देखें तो दिस विल बी द साइड व्यू. तो ऐसे करके बेसिकली ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ हम सॉलिड्स की स्टडी करते हैं, शीट्स की 2D इमेज, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें. तो इस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ध्यान देना है. इसके लिए आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट ईयर में टिकलेस एकेडमी और आई थिंक नवीन पुरोहित, नवीन पटनायक, इन 2 लोगों का बहुत हेल्प लिया था. यूट्यूब चैनल है, तो नवीन का तो आई थिंक ED के लिए है, एंड टिकलेस में तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के भी गुड रिसोर्सेज मिलेंगे, तो यू शुड सी दैट. आई रिमेंबर माई सिविल इंजीनियरिंग स्कोर दैट वॉज 33, एंड आई थॉट इट वॉज लेस, बट बहुत टफ लगा था मुझे उस टाइम पे. ये स्कोर्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम पे एफर्ट भी लगाया था, एंड इवेंचुअली थिंग्स वर लाइक कि पढ़ना पड़ता है. दिस इज समथिंग, 2 सब्जेक्ट्स हमने कवर करे हैं. ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो लग रहा होगा, बट आई थिंक इसके बाद आपको कॉलेज में क्या क्या होता है उसके बाद नहीं देखना पड़ेगा. तो ये हो गया, ED हो गया, सिविल हो गए, 2 टफ. BEE मेरे को तो टफ नहीं लगता था ऑनेस्टली, मेरे स्कोर भी उसमें अच्छा था. उसके अलावा फिजिक्स वॉज ऑल्सो माई गुड सब्जेक्ट, तो गिरीश सोनी फैकल्टी थी मेरे, तो मैं, एंड विपिन कौशिक सर, आप अगर कॉलेज में हो तो आपको पता पड़ेगा. एंड गिरीश सोनी सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था उस टाइम पे, तो आई वॉज अ फैन, तो मैं तो उनको बहुत फॉलो किया है. एंड उनके क्या बोलते हैं, उनने जो पढ़ाया था उसको भी, और उन्होंने एक बुक बोला था रेफ़र करने को, HK, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट वो बुक मैंने पूरी पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी. एंड मेरा 46 स्कोर था, और उस टाइम आई थिंक बैच हाईएस्ट वॉज 51, तो मेरा अच्छा स्कोर था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है अच्छा स्कोर था. मैथमेटिक्स के लिए देयर इज़ मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 जो डिवाइडेड होगा आपके अक्रॉस द सेमेस्टर्स, तो उसके लिए भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना तो पड़ेगा. बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं है. यूट्यूब पे MKS ट्यूटोरियल्स करके चैनल है, MKS ट्यूटोरियल्स, तो वो देख लेना, उससे बहुत कुछ कवर होता है. अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा हो इस वीडियो को, या इनकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो
तो फर्स्ट ईयर में तो ये सब हो गया। फिर मैं बहुत एक्टिव थी, आई वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट। मैं मतलब बहुत करिकुलर वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने मल्टीपल क्लब्स के इंटरव्यू दिए हैं एंड फिर उन क्लब्स को छोड़ भी दिया है कुछ टाइम में। तो ऐसा नहीं है मतलब कि जैसे अगर मैं सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ऑनलाइन जो दिया था वो GSPH विच इज़ द प्रोडक्शन हाउस ऑफ GSITS, तो उसका इंटरव्यू दिया था ना। आई वॉज एबल टू क्लियर दैट, 2-3 राउंड्स हुए थे आई गेस, इंटरैक्शन वाला राउंड था। बट फिर भी उस टाइम मेरे अंदर एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म बहुत था कि मैं अपने आप पे डाउट नहीं करती थी, भाई जो है सो है, उस एटीट्यूड में जाके सारे आंसर्स देती थी। बहुत सिचुएशन वाले आंसर्स थे। थोड़ा क्लब्स का इसलिए ले आई क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो बच्चे क्लब्स में लाते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। अभी क्या सिनेरियोज है क्लब का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बाकी ई सेल वॉज ऑल्सो देयर, सो ई सेल के तो इंटरव्यूज़ लेट होते हैं। तो ई सेल में आई वॉज द कॉन्टेंट क्रिएटर, सो आई वॉज राइटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फॉर देम। आई वॉज विद देम फॉर अबाउट आई थिंक अ ईयर एंड देन आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। कि बहुत बार हो जाता है कि आपके अकैड्स थोड़े से साइड हो जाते हैं, क्लब प्रायोरिटी हो जाता है कभी। अगर सीनियर्स नहीं समझते, मेरे टाइम में तो सीनियर्स कुछ कुछ ही थे जो अच्छे थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई लेफ्ट ई सेल एंड देर वॉज NSS विच इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, जो गवर्नमेंट का है। ऑनेस्टली मैंने बहुत एक्टिवली 1 साल काम किया NSS में भी। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो B लेवल सर्टिफिकेशन के लिए आई वॉज होम एंड मेरी अटेंडेंस पता नहीं उनको कुछ तो रहता है। इंटरनल पॉलिटिक्स हर जगह रहता है, तो आई मेक श्योर कि भाई, क्योंकि वो मैं कॉर्पोरेट में भी सीख रही हूँ भी, क्योंकि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि कॉर्पोरेट में इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या सीन रहता है। एंड अभी धीरे धीरे लगता है कॉलेज में भी हुआ है ये सब चीज़ें। तो अगर आप जैसे लड़कों को उतना, लड़के आर मोर प्रैक्टिकल एंड सम आर, डिपेंड्स फ्रॉम लाइक प्लेस टू प्लेसेस सॉरी। तो मेरा ये सिनेरियो रहेगा कि जो लड़कियां हैं जो भी छोटे शहरों से हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे छोटे छोटे शहरों से आए थे, सौसर, छिंदवाड़ा एंड देन मेनी प्लेस, नॉट छोटा इन द वे, लेस पॉपुलेशन इन दैट वे। तो उसके अकॉर्डिंग क्लब्स में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एलुमनाई क्लब भी था, बहुत सारे क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करो। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, इसके अलावा क्लब्स IT डिपार्टमेंट का हैश इंक्लूड है, तो वो करना। अगर आपको, मैं गई थी इंटरव्यू देने पर मैं बोल दिया कि मेरा प्लान नहीं है कंटिन्यू करने का, क्योंकि मैं डर गई थी, क्योंकि वहाँ सारे अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो मुझे लगा क्या बोलते हैं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त, मतलब अच्छी थी, मैंने 2 राउंड्स क्लियर कर लिए थे, फाइनल राउंड था। एंड मेरे जो इंटरव्यूअर थे, ही वॉज गोल्डमैन सैक्स, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें प्लेस थे। बट वहाँ पे जाके वही है ना कि आपको, मेरे को अब लगता है कि यार मैं उस टाइम बहुत अच्छी थी, बट मैं सोचती ज़्यादा थी। तो हर इंसान के साथ होता था कि भाई मैंने सोचा है कॉलेज में अपने आप के बारे में। इवेंचुअली आप अच्छे होते हो बट फिर भी एक डाउट रहता ना आपके अंदर, तो वही सिनेरियो मेरे साथ होता था। तो मैंने हैश इंक्लूड का इंटरव्यू, आई वॉज अबाउट टू मेक इट आई गेस, अगर हो जाता, पर मैंने ही वहाँ पे जाके लास्ट इंटरव्यू में बोल दिया कि आई एम नॉट प्लानिंग टू ज्वाइन, ऐसा ऐसा करके। ये चीज़ें मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को एनालाइज किया फ्रॉम लास्ट 4 years एंड आई हैव सीन कि व्हाट चेंजेस कुड हैव बीन डन। बट ऑनेस्टली ठीक है, जैसा भी है, अब तो प्लेसमेंट हो गया है। ऐसा लगता था पहले जो हैश इंक्लूड के बच्चे उन्हीं का प्लेसमेंट होता है। फिर कंप्यूटर क्लब है सिमिलरली CS का, एंड देयर इज़ रोबोटिक्स क्लब हैं जो अपने CEEE इलेक्ट्रिकल का है, रोबोटिक्स क्लब SRC EC का है, मैक और इनका आइडिया नहीं, मैक का यार बाजा है, बाजा आई थिंक बाजा करके बोलते हैं, जहाँ वो लोग कार वगैरह बनाते थे और कुछ कारें हमारे लाइक कॉलेज में चलती रहती थी। तो ये क्लब्स वगैरह का आई थिंक इन्फॉर्मेशन इतना इनफ है जहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरा कहना रहेगा कि आप इंटरव्यू दो, अपने आप को एनालाइज करो, क्या आप ऐसा इंटरव्यू क्लियर भी कर पा रहे हो, बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं कर पाते थे, ऑनेस्टली क्लियर ही नहीं होता था उनका इंटरव्यू, दे गॉट रिजेक्टेड। एंड वो चीज़ अगर आपके अंदर है ना कि आप, जैसे आई फील आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, वो चीज़ मेरे फ्रेंड्स में नहीं थी, तो प्लेसमेंट में उनको बहुत दिक्कत हुई। वो लोग इंटरव्यूअर हो या फैकल्टीज हो, उनसे बात ही नहीं कर पाते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पाते थे। वो चीज़ आपकी खुल जाएगी। और आई थिंक 1 साल करना चाहिए क्लब में काम, 1 साल 1.5 साल करना चाहिए। उसके बाद अगर लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो साइड हो जाओ, मतलब मेरा ये रहेगा 1.5 साल काम करो। तो ये क्लब्स का हो गया। इसके बाद मैं अपने सीनियर्स को शाउट आउट दूंगी बिल्कुल। स्वयं गाबा सर वॉज रियली हेल्पफुल एंड देयर वर वेरी पीपल लाइक नमन शर्मा वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम NSS, उनका तो अच्छा, लाइक यशराज सर, मतलब ये मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया है। स्पेसिफिकली स्वयं गाबा सर, ही इज़ अ स्वीटी, मतलब, एंड आई थिंक वो अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन एमडॉक्स, एक कंपनी है, उसका थोड़ा आगे बताते हैं। तो यही हो गया। I think this is enough for clubs. Then second year I was in IT, second, third year, fourth year. तो syllabus आप देखना वेबसाइट पे, there are multiple subjects, data structures, OOPS in Java, then we have operating systems, DBMS, बहुत सारे subjects हैं, vary from branch to branch. So I'll not discuss more. What I'll make sure that you guys make sure that you have good CG. That is important for placements. Honestly, many of my friends जिनका CG अच्छा नहीं है, they are not placed अभी तक।
सीजी अच्छे से नहीं है, मतलब जिनका 6.5 के आसपास सीजी है उनको अच्छे पैकेजेस नहीं मिले। अच्छे पैकेजेस तो इस बार का सिनेरियो बहुत अजीब रहा है, मेरे सीनियर्स के प्लेसमेंट्स तो फिर भी अच्छे हुए थे, तो वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी। मैं सेकेंड ईयर में जब थी तो मेरे को मेरे फैकल्टीज़ ठीक थे। अब सिस्टम लैब्स रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, 10 से 6 इंसान कॉलेज में रहता है। वैसे ये सिनेरियो रहता है सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अटेंडेंस का मेक श्योर करना। कॉलेज का मैं जितना बताऊँ कि यही ब्रांचेस में यही रहता है, खाने के लिए अच्छा खाना, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज भूख तो लगती है इंसान को। लैब्स में हम लोग मस्ती भी करते थे, असाइनमेंट्स भी करते थे। CSE में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है इनिशियली, बट वो लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर में बहुत बहुत रिलैक्स कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे साथ लास्ट ईयर में इतना नहीं हुआ कंपैरेटिवली, बिकॉज उनके पास कोर्सेज होते हैं जिनको ऑनलाइन करने होते हैं। अगर आपको पता है NPTEL करके एक वेबसाइट है, तो बस उनको वो कोर्सेज करने होते हैं, पर हमें रेगुलरली क्लास आना होता है। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी होता है। तो ये तो हो गया। IT की बात कर दी मैंने। IT में देखो, IT रिलेटेड वीडियो अगर मतलब देखना है तो देयर इज़ समथिंग, मैं इतना इन डेप्थ इफ़ यू वांट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बाकी वो दूसरे ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। IP मैकेनिकल अच्छा है, सब अच्छा है। देन वी हैव बायोमेडिकल, ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि आप फिर ये डिपेंड करता है, अब सब चीज़ें प्लेसमेंट पे डिपेंड कर जाती हैं। एक ब्रांच, एक अच्छा स्टूडेंट, CG मैटर करता है, ऐसा भी नहीं है। मेरा तो क्यूमुलेटिव CG कितना है, आई थिंक 8.47 है अभी, 4 या 4.7 है। तो अभी तक तो अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अगर आ जाएंगे तो शायद वो 8.5 के ऊपर हो जाए। बस यही चाह रही हूँ कि 8.5 के थोड़ा ऊपर हो जाए, तो एटलीस्ट ठीक लगता है कि अगर ठीक रहता है इन माई केस। बाकी मेरे बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनके 9 CGP भी हैं, 2-4 बच्चे हैं ऐसे, और अच्छे प्लेसमेंट्स भी हुए हैं। तो ये तो हो गया। अब बाकी जो लोग मस्ती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉलेज में जाओगे तो अपने पता पड़ जाएगा, करो मस्ती, इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट मेक श्योर दैट योर अकेड्स आर नॉट, बिकॉज मैनी ऑफ द केसेस, मैनी ऑफ माई batchmates, they had very good percentiles, but end up into doing wrong in the sense they started smoking and then drinking. फिर वो चीज़ें लेवल बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता है किसी भी चीज़ का। इफ़ यू फील दैट इट इज़ ऑन द फर्स्ट को तो सब अच्छा लगता है, बट इवेंचुअली चीज़ें इंक्रीज जाती हैं। तो मैंने देखा है कि एक ईयर बैक है, लोगों को 5 साल में कर रहे हैं अपनी BTech, बहुत अच्छे परसेंटाइल्स थे, 98 करके अच्छे परसेंटाइल्स थे, बट दिस इज़ लाइफ एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक द नेम्स फॉर श्योर ऑल्सो, बट ऐसा हुआ है। तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी है आपको, बिकॉज वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है। एंड बहुत ज़्यादा गॉडफादर ईगो भी नहीं लाना है कि हमने 98 परसेंटाइल है तो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं बिल्कुल, अब तो मज़े ही करेंगे। फिर CG गिर जाएगा तो प्लेसमेंट्स में दिक्कत आएगी। हाँ, प्लेसमेंट सिनारियो को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर विच इज़ लाइक माई 24-25 प्लेसमेंट सिनारियो। तो अब सब्जेक्ट्स का क्या रहेगा, हाँ क्या क्या पढ़ना है, दैट इज़ अ डिफरेंट वीडियो, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। प्लेसमेंट सिनारियोज बता देती हूँ इसमें, बिकॉज जनरली आपको एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, जिससे C या जावा, ये सब एक लैंग्वेज, आप कंप्यूटर से किस तरीके से बात करते हैं, जो बच्चे नहीं हैं उनको शायद अगर आइडिया हो तो। उसके अलावा उसमें कुछ एल्गोरिदम्स रहती हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं, वो सब बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप सॉफ्टवेयर में प्लेसमेंट फोकस कर रहे हो, अगर आप कोर में फोकस कर रहे हो, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का पावर सिस्टम्स है, आप मशीन्स पढ़ते हो। मैकेनिकल में आप कुछ ना कुछ जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स और वो मैटलैब करके कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक वो सब करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आई गेस, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्लेसमेंट्स पे फोकस करते हैं। मैं CSIT के प्लेसमेंट्स का आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। बाकी इलेक्ट्रिकल EC वाले बच्चे भी अपीयर करते हैं। प्लेसमेंट सारे बच्चों के लिए होता है इरिस्पेक्टिव द ब्रांच, बट कुछ कंपनीज़ होती हैं जो प्लेसमेंट्स में मैकेनिकल IP को नहीं भी डालती हैं, बट कुछ होती हैं ऐसे। तो प्लेसमेंट्स के लिए इफ़ आई टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मेरे बैच के लिए सिनारियोज, मतलब जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी जनवरी में, अच्छी तरीके से जनवरी मार्च में पढ़ाई शुरू करी थी, और जुलाई से प्लेसमेंट्स आ जाता है। आइडली मार्च से अच्छी तरीके से करी थी। मार्च से जुलाई जो भी पढ़ाई करनी होती है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली कंपनी आती है इत्यम करके, तो इट वॉज लाइक उसका 8.5 7.5 ऐसा करके कुछ था, 7.5 बेस और कुछ बोनस करके पॉलिसी। तो इट वॉज द फर्स्ट कंपनीज, आइडिया नहीं रहता है पेपर कैसे देना होता है। एंड यूजुअली इंटरव्यूज़ नहीं, यूजुअली अपना जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। कुछ कंपनीज, एक्सेंचर हुई, जो बाद में हमारे Day 1 कंपनीज जिसको कहते हैं, Day 1 का भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं जब पढ़ा डॉक्यूमेंट तब मुझे पता पड़ा कि Day 1 कंपनीज क्या होती हैं। तो ऐसे इत्यम आई, 2 बच्चों को लिया बैच से, जब देख रहे 2-3 बच्चों को लिया।
पहली बार में मैंने भी दिया था पेपर, बट डिसहार्टमेंट आ जाती है। पर पहली कंपनी 2 बच्चों को लेके जा रही है, इतने सारे बच्चे हैं, 300-400 बच्चे हैं, CSIT का मिला के या EC इलेक्ट्रिकल तक देखें तो। फिर आई अपनी डिलॉइट में मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बट मेरे को कॉल ही नहीं आया क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। उनको जिनने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया उसको कॉल आ गया, बट सिनारियोज अलग थे, थोड़ा रोए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। पेपर में आता क्या है उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो रखेंगे अपन। आप लोग रिक्वेस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आई एम इन्वेस्टिंग माई 30 मिनट्स। तो ऐसा नहीं है कि काम भी कर रहे हैं, अब तो कॉर्पोरेट में सब सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेक स्किल भी सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए तो ये तो था। देन केम Pointify, जिसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया भगवान की कृपा से, माई गॉड्स ग्रेस, बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ मेरा प्लेसमेंट हो गया। दैट वाज ऑन 23 अगस्त 2024। तो ये चीज़ हो गई। इसके भी 2-3 इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अगर इफ़ यू वांट आई कैन डिस्कस ऑन अ डिफरेंट वीडियो। देन देयर वाज कंपनी का जो सीरीज़ चला मास्टर कार्ड, मैं इंटर्न के टाइम पे भी 2nd राउंड आउट हूँ मास्टर कार्ड, फुल टाइम में भी मतलब 4th ईयर में भी 2nd राउंड आउट हूँ। HR तो मैं आई हैव द कैपेसिटी टू क्लियर, बाकी वो सारी चीज़ें। तो मास्टर कार्ड ने विज़िट किया, वो 2 प्रोफाइल्स के लिए आई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आई थी और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आई थी। तो ऐसे करके कंपनीज़ आई हैं। ओरेकल ने विज़िट किया हमारे कैंपस को। एंड Day 1 कंपनीज़ जो होती हैं जो आपको कम ऑफ़र करती हैं, बट जैसे मास हायरिंग्स वाली जो कंपनी होती है, जैसे इन्फोसिस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी हमारे कॉलेज में आई है, बट फिर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। जनपैक्ट ने हमें विज़िट किया, जनपैक्ट का इस बार बहुत वो हो गया था। तो ऐसे करके हमारे यहाँ कंपनीज आती है, बट द प्लेसमेंट सिनेरियो इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो। अगर आप सोच के आ रहे हो कि हमारा तो एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख का लगेगा, तो वो भी सच नहीं है, ये सच बिल्कुल नहीं है। अगर किसी बैच में आपका एक इंसान गूगल चला जाता है जिसका 50 लाख का पैकेज है और आप 4-5 लाख के पैकेजेस पे हो, तो आप उसका मीडियन करोगे या एवरेज करोगे। अगर वो 10 लाख गलती से भी हो रहा है, पर वो सच नहीं है, तो आप फैसिनेटिंग पैकेजेस को सुन के कॉलेज मत आना। कॉलेज का सिनेरियो इस समय ऐसा हो रखा है कि कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, आ नहीं रही हैं। ये मार्केट का ही सिनेरियो ऐसा हो रहा है, बट फिर भी एक डिसहार्टमेंट है। मेरी खुद की बहुत अच्छी दोस्त, बहुत पढ़ाई करी, CG कम है उसका, बट CG कम है तो अभी तक प्लेस्ड नहीं है। ये सिनेरियो है, वो सोच रही है मास्टर्स करने का, गेट की तैयारी करेगी। बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके सिनेरियो साथ ऐसा हुआ है। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो कि कॉलेज आना तो सब सीखना पड़ेगा। बिना सीख कर अच्छी कंपनीज आती है, 3-4-5 कंपनीज आई हैं इस साल। अब नेक्स्ट ईयर का क्या सिनेरियो रहता है एग्जैक्टली डोंट नो, बट जो भी रहेगा कॉलेज में कंपनीज आती हैं, आई हैव टू गो ऑल्सो। तो जो भी है आती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस केपेबल बन जाओ कि आप उस कंपनी को फोड़ लो। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट। बाकी प्लेसमेंट सिनेरियोज़, सब्जेक्ट सिनेरियोज़, IT का क्या रहा, हॉस्टल के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड आप वीडियो को लाइक करना। प्लेसमेंट्स इस बार अच्छे नहीं हुए हैं, पीपल आर डिसअपॉइंटेड एंड दिस इज़ इन जनरल अ सिनेरियो विद एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज। बट फिर भी जो वो आप एस्केपिज्म लेके आते हो ना कि यार अब तो अच्छा लेके जाएंगे, तो आई एम ऑन अ बेटर। मैं जो देख रही हूँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, उसके कंपैरेटिवली कभी कभार मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड। एंड ये सिनेरियोज़ हैं। And I think this video is pretty long, 32 minutes. Do like this channel, subscribe to my channel, and जो वीडियो मैंने 32 minutes दिए हैं उसको प्लीज़ आप लाइक करें। And that's all from my side. Thank you very much. Have a good day.